Hello, dear aspirants. So, I hope you all are enjoying the concept talk because we are not doing random questions here, or we are not explaining just random concepts, but we are very systematic here within the peripheral of demand of CSE and forest services, right? So, as the name suggests, we are going to discuss a very fantabulous concept today that can give you a different kind of approaches to solve questions in case of your CSE or forest services exam. So basically I'll be starting from the basics again. Many of you might not have revised the stuff, so I'll be trying to connect the dots here as well. So we have the topic statics in the paper 1. Under that we have a chapter that is position of equilibrium of any body or system of bodies. Equilibrium के अंदर में we are interested in getting stable and unstable equilibrium. We have different articles here, right? Article 1, 2, 3 that depends on the geometrical configuration of given system. If you haven't attended the previous concept talk, I would like to suggest you go for that. You will get a better picture, dear fellows. Fair? Although you may continue from here itself, but whenever you get time, please don't forget to go back into the previous concept talks. So today I am interested in, ध्यान से देखिएगा, getting the equilibrium for rectangular laminas. What does that mean? When I say prepare in right way for this your mathematics optional or the whole UPSC prep, actually this is a feeling which I live, be as a teacher or as a student. I always try to live it, cause when you deal the chapter equilibrium and this stable and unstable equilibrium, at the first second round you may feel that this topic is very bulky. I am not getting any clue how to prepare this topic. But if you have attended just 1 hour for this concept talks, not only this, previous to as well, you will realize this topic is very much doable, easy as well, but only when you prepared this in a right way. So what is a right way to prepare this particular topic? The very first point which I told you, you have to set different categories of problems, right? What you have to do, dear fellows, you have to set different categories of problems in the chapter. Okay? So whenever you will go for this, you will have some 4 to 5 categories only, be it CSE, be it forest services. ठीक है, आपके पास केवल ये 4-5 कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जिन पर अगर आपने काम कर लिया तो बात बन जाएगी. अब कैसे काम करना है इन कैटेगरीज पर, तो सबसे पहला स्टेप ये होता है गेटिंग कीवर्ड्स आउट ऑफ गिवन क्वेश्चन. ठीक है, दिस विल टेल यू द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. व्हाट डियर फेलोज? ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन. अब यहां से क्या होगा, फ्रॉम हियर वी विल डिपिक्ट, फ्रॉम हियर वी विल हैव द अनदर स्टेप. व्हाट इज दैट स्टेप? ध्यान से देखिएगा कि अंडर विच कैटेगरी दैट
problem lies, right? So if you have gone through this chapter, you will realize here you may have systems like this. You may have this, you may have this, you may have this, anything like that. Okay, when you talk about article 2, और यहां पर अपने को जो याद रखने वाली बात है वो ये है, अब आप कहेंगे कि सर ये स्मॉल एच आर क्या है? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ अपर बॉडी, ठीक है? कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ लोअर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर बात करें तो स्मॉल आर इज इंफिनिटी बिकॉज दिस इज फ्लैट सरफेस. Here if you talk about capital R, that is also infinity. Here if you talk about capital R is this and small, so for example यहाँ पर आएंगे, so capital R is this, small r is this. So that is what you try to get the system के साथ में working over the article 1. अब आप कहेंगे कि सर आर्टिकल 2 में अब यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी, दैट विल बी योर फाइनल आंसर. तो स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात जब हम करते हैं, वी डोंट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ थिंग्स टू स्टडी, बट इतना क्लियर कट पिक्चर लाने के लिए आपको एक बार इस चैप्टर में किसी भी कोचिंग, किसी भी बुक, किसी भी यूनिवर्सिटी का बुक लेवल पे आप ले लीजिए, उसके एग्जाम्पल्स उठाकर देख लीजिए, वो ऐसे ही कैटेगराइज फॉर्म में दिए होंगे. इफ यू आर प्रिपेयरिंग स्मार्टली फॉर दिस यूपीएससी, दिस ऑप्शनल, just take those categories of examples as a different subtopic and try to explore all these steps. This is the only task, this is the way to prepare this topic in right way. So similarly इसके अंदर में you will have configurations like this. तो इसका जो रेडियस होगा that is small r, और ऊपर वाले का पूरे का जो रेडियस है that is capital R. क्लियर? बाकी h क्या है? H is the height of CZ, ठीक है? Height of CZ from the point of contact. क्या बोला? H is the height of center of gravity of the point of contact. So when I talk about the center of gravity comes into picture here, then you people are suggested, ध्यान से देखना, you have a topic centroid or CZ. Here you have direct questions. Some people might be taking that in integral calculus because that is just application of calculus only, or indirectly of some particular bodies like sphere, hemisphere, cone, isosceles triangle, square. If you have idea about CZ of these 4 to 5 bodies, then this particular chapter needs this thing only. एक होता है सिस्टम ऑफ बॉडीज का सीजी कैसे निकाला जाता है, तो बाई बार का फॉर्मूला W1/1 प्लस W2/2 डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, दैट इज फॉर व्हाट? सीजी के लिए सिस्टम ऑफ बॉडीज.
if you have this much information with you, then this chapter position of equilibrium as a stable or unstable is easy to handle. फिर अब आप कहेंगे कि सर नहीं नहीं बहुत दिक्कत होती है, तो मेरे भाई 70 to 80% जो गेम है वो है 10th लेवल ज्योमेट्री का, ठीक है। अब आपको ये लगता है कि 10th लेवल ज्योमेट्री जो है वो मैं एक महीने पढ़ूंगा अच्छे से तो ये सवाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे, ऐसा मत कीजिए। दिस इज द राइट रॉन्ग वे। What you need to do is you just work on categories of questions. You will find every book, every notes or papers का PYQs. Those are comprises of some standard examples. So what I suggest is solve those examples multiple times. ठीक है? Solve those categories of examples multiple time, observe it and note as bullet points. इतनी जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूं, आपको ये लग रहा होगा कि मास्टर सीधा सीधा प्रॉब्लम पर क्यों नहीं आया, तो फिर से हम गलत तरीका सेट कर ले जाएंगे, जबकि हम यहां खड़े हैं सही तरीका सेट करने के लिए। राइट और नॉट? अरे बोलो हाँ या ना भाई। चलिए, ज्योमेट्री जितनी चाहिए वो इन कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल को ऑब्जर्व कीजिए, उनका नोट बना लीजिए, बार बार उनको रिवाइज कीजिए कि कहां साइन रूल लगता है, कहां ये वाले तीनों आर्टिकल्स लगते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जनरल बॉडीज, ये है जनरल केस, ठीक है। मिसलेनियस के अंदर रेक्टेंगुलर लैमिनास, कोन एंड ऑल, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल पिक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को पढ़ने का ये एक तरीका होना चाहिए जो मुझे लगता है। अब मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर इतनी सारी चीजें तो आपने बता दी, जरा इसको इंप्लीमेंट करके बताइए कैसे बात बनेगी। सो दीज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डेल्ट इन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट टॉक्स। टुडे आई एम गोना डिस्कस अबाउट दिस। मीनवाइल यू विल catch the pattern of implementation. So I won't be having the like ready-made kind of stuff here. आराम से एक प्रॉब्लम लिखते हैं, एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं, आंसर फाइंड करने के बजाय आंसर को डिकोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हैव यू एंजॉयड दैट और नॉट। फेयर? सो आर यू गाइज रेडी? लेट्स हैव इट। राइट द क्वेश्चन प्लीज। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं आप लोग उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द लेक्चर। ए स्क्वायर लैमिना अंडरलाइन द वर्ड स्क्वायर लैमिना, एक प्लेट टाइप का है स्क्वायर आपके पास, ठीक है। चलिए, रेस्ट विद इट्स rests with its plane perpendicular to smooth ball। अच्छा ठीक है, perpendicular to smooth ball। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। जिसका इस लैमिना का एक कॉर्नर अटैच किया गया है, अब जाके थोड़ा ये खुलेगा क्वेश्चन। वन कॉर्नर बीइंग अटैच्ड टू अ पॉइंट, बीइंग अटैच्ड टू अ पॉइंट इन द बॉल
बाई अ स्ट्रिंग। अब देखेंगे, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, मैं इसको डिकोड करने की कला सिखाता हूं आपको। जैसा बोलता जाए वैसा करते जाओ, ठीक है। सो क्या है अपने पास डियर फेलोज, ध्यान से देखना। अपने पास है एक वॉल, ये क्या है, वॉल, ठीक है। इस पे टिका हुआ है एक स्क्वायर लैमिना, लैमिना मतलब प्लेट टाइप ऑफ, स्क्वायर प्लेट टाइप, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेट का एक एंड स्ट्रिंग के द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है। इस स्क्वायर प्लेट का एक एंड स्ट्रिंग के द्वारा इस बॉल पे बंधा हुआ है, ठीक है। चलिए, इतनी बात बोल रहा है, ए स्क्वायर लैमिना रेस्ट विद परपेंडिकुलर, मतलब ये यहां पे टिका हुआ है परपेंडिकुलर, यहां से ये स्ट्रिंग के द्वारा बंधा हुआ है। तो प्रॉब्लम डिकोड करना बहुत जरूरी है। ये बॉल है, ये यहां टिका है, ये स्ट्रिंग से बंधा है। चलिए, सो बंधा है तो वहीं से लटका होगा, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो कहां हो गया, दिस वाला पॉइंट। मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम बेसिकली वी ट्राई टू गेट द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं, टू डिस्कस अबाउट इक्विलिब्रियम वी टॉक अबाउट ईदर हाइट और डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। So if you observe your configuration, my dear fellows, here we will be interested, किसमें इंटरेस्टेड होंगे, here we will be interested in getting the depth of center of gravity of lamina from point of reference। इतनी बात क्लियर है या नहीं सबको, विश्वास दिलाइए सारे लोग। आई होप दिस विल बी क्लियर टू ऑल, क्लियर। चलिए, अब ये जो हाइट, हमें हाइट या डेप्थ, लेट्स से आई रिप्रेजेंट इट बाई जेड। किससे रिप्रेजेंट कर दिया मैंने उसको, जेड से। इफ यू ऑब्जर्व अब द क्लासिफिकेशन, देखिए ध्यान से, यहां पर अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं किया, लेकिन मैं आपको पूरा का पूरा पिक्चर डिकोड करने की ओर सिखा रहा हूं कि कैसे इन प्रॉब्लम्स में आनंद लिया जाता है, इनको जॉय फील किया जाता है। देखिए ध्यान से, अगर मान लो किसी बॉडी का, ध्यान से देखना, अब हम करेंगे क्या यहां पर, मान लो दिस इज द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इफ दिस इज द हाइट ऑफ सीजी ऑफ सम बॉडी, ठीक है, यहां पर ये हाइट है, ये हाइट है। इफ यू हैव सम बॉडी हियर, यू हैव सम बॉडी हियर, तो इफ जेड इज मैक्सिमम then equilibrium will be unstable। यहां Z क्या है, Z है हाइट ऑफ सीजी। मान लो इसका G यहां पे वर्क कर रहा है, ठीक, राइट और नॉट। हाइट ऑफ सीजी, अगर हाइट मैक्सिमम है, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करेंगे, ये बॉडी अपनी पोजीशन में वापस नहीं आएगी, नीचे गिरेगी जाके, विल फॉल डाउन। तो इफ यू हैव आइडिया अबाउट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट विल हैपन कि इफ z द हाइट ऑफ cz ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम, अब इसको जरा टिल्ट कर लीजिए, ये अपनी पोजीशन में वापस आ जाएगी। यहां पर हाइट ऑफ cz इज मिनिमम,
So height of CG is maximum, then position of equilibrium of that body is unstable. Now reverse the scenario. If the depth of CG is maximum, then the equilibrium will be stable. बोलिए हाँ या ना, एकदम विश्वास के साथ कहिए। क्लियर है? प्रॉब्लम पर वापस आए। अब आपको पता चला कि मैं पीपीटी बना के क्यों नहीं लाता, क्योंकि इतना आनंद, इतना डिकोडेड फॉर्म कैसे आएगा, फिर एकदम आर्टिफिशियल टाइप का फील आने लगता है मैथ्स, फिर मैथ्स का जो जॉय है ना वो चला जाता है। ये मेरा पर्सनल मानना है, बाकी ओपिनियंस में डिफर एंड आई वेलकम दैट। आगे बढ़ते हैं। बॉल बाई अ स्ट्रिंग, क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ equal to the side of the square, equal to the side of the square. Find the position, find the position of equilibrium, find the position of equilibrium and so that it is stable, and so that it is stable. आराम से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द प्रॉब्लम बेस्ड, और इस प्रॉब्लम को हमने डिकोड कर लिया है कंप्लीटली। हमें यह पता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है। राइट डियर फेलोस? अब आते हैं कि अगर हमें इसका केवल आंसर लिखना होता तो हम कितने में इंटरेस्टेड होते। यहां पर मैंने क्या सिखाया आपको प्यारे बच्चों? यहां मैंने सिखाया हाउ टू डिकोड अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब हमें केवल डिकोड और आनंद में ही नहीं है, परफॉर्म भी करना है। तो फॉर दैट अब आपके लिए मैं क्या करता हूं, इसका आंसर भी लिखने की कोशिश करता हूं, सो दैट आपको यह क्लियर रहे कि यहां पर कॉन्सेप्ट टॉक में हम कोई हवाई फायर नहीं दे रहे हैं, बहुत सिस्टमेटिक लर्निंग के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अगर मुझे इसका आंसर करना होता, सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू गेट द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। फेयर? I hope no one have issue with that, right? So this is the square, it is attached with this point of reference. Fair? अभी हम इसको क्या करेंगे, नाम दे देंगे इसका। So just to repeat, like avoid the confusion here, I'm just taking the reference as well here. So E F here, this is the point B. ठीक है, sorry, this is A, B, C, let's say this is the point D. अब मान लो, just to make you clear, आराम से मैं चीजों को करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्क्वायर है तो इसका CG हम लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, है ना, थोड़ा मतलब आनंद वाला फिगर तो बने कम से कम। So this is the point A. Let's say this is the point C. Let's say this is, थोड़ा सा कोऑपरेट करना, मेरी आर्ट अच्छी नहीं है। तो ये हो गया। अब मान लो ये पॉइंट हो गया। We can attach these 2 points here. So let's say this is the point G. ध्यान से देखना, ये हमारे बहुत का काम का होने वाला है। जहां इसका वेट मतलब CG पर इसका वेट W नीचे की ओर काम कर रहा है। अब केवल रेफरेंस ले लेते हैं ताकि जहां जरूरत पड़ेगी उसको वैसे यूज कर लिया जाएगा।
तो इफ दैट एंगल इज थीटा सो दिस इज ऑल्सो थीटा. ठीक है, फेयर एनफ. अब अगर हम बात देखें, ये एंगल है 45 डिग्री, तो ये भी 45 होगा, और ये थीटा है, तो ये पूरा एंगल मिलके बन जाएगा 45 डिग्री प्लस थीटा. अब हम लगा देते हैं 10th लेवल ज्योमेट्री. अच्छा, आपको लिखना नहीं है ये, ठीक है. ज्योमेट्री लगा दें एकदम बच्चा लोग की तरह, और मान लो साइड्स ऑफ स्क्वायर, जस्ट फॉर कैलकुलेशन टू बी इजी वी आर रिप्रेजेंटिंग 2b टाइप. ठीक है, तो यहां पर इफ यू राइट ज्योमेट्री के अंदर BG फेयर, so that will be 2b cos 45, that is root 2b. So depth of CZ, that is the distance between E and G. So that is given by, or you can say the depth of G below E, right? So that will be given by EF plus HG. EF तो H मतलब ये रेफरेंस अगर ले लें तो HG ये हाइट प्लस ये वाली हाइट, अपना काम बन जाएगा. बाकी 10th लेवल का ज्योमेट्री लगा दीजिए. तो 2b cos थीटा प्लस BG साइन 45 डिग्री प्लस थीटा. 2b cos थीटा को ऐसे ही रखें, तो b 2 cos थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा प्लस 45 डिग्री. साइन a प्लस b से इसको खोल दीजिए, you will have 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा. सो इफ यू ऑब्जर्व कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स में कितना बुखार आता है, डिग्री ऑफ फीवर. ठीक, पीछे हमने चीजों को डिकोड किया, एक एक पॉइंट को समझाने की कोशिश की, राइट. यहां पर जब हम आए तो हमने आपको यह महसूस कराने की कोशिश की कि मेरे भाई इसके आंसर्स बहुत लेंदी नहीं होते हैं. अगर आप प्रॉब्लम को डिकोड कर ले गए ज्योमेट्रिकली तो पहला स्टेप अगर आपने लिख लिया, दूसरा स्टेप है ज्योमेट्री का, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था 10th लेवल ज्योमेट्री की. ठीक है, ऑल्दो आई डिडंट एक्सप्लेन मच हियर बिकॉज I want you to do that exercise by yourself so that you can figure out कि whenever I have a problem like this, then what geometry is required. Like 45 डिग्री प्लस थीटा क्यों हो गया, मैं चाहता तो इसको ना लिखता तो और थोड़ा मजा आता. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर कितने पर कट करेंगे, G डायगोनल पर लाई करेगा. ठीक है, तो इस टाइप की चीजें अगर आप चाहें. अब हमने यहां पर थीटा क्यों लिया, क्योंकि अगर आप अपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो उसने पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम. मींस इफ यू टेक दिस एंगल थीटा, यू वांट टू नो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल or unstable. So this question itself need what is the value of theta, and other we have to show other part में कि for that particular value of theta the equilibrium is stable. Clear है? So the question has two parts. यहां तक किसी को कोई तनाव है तो चिल्लाइए, भरपूर चिल्लाइए. अब आ जाइए आंसर पर. एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये. जैसे ही आपको ये जो CG का हाइट डेप्थ मिला, इसको Z लिख लिया. Z इक्वल्स क्या है, B इंटू 3 cos थीटा प्लस साइन थीटा. गिव दिस इक्वेशन नंबर 1. नाउ डिस्कस अबाउट मैक्सिमा मिनिमा ऑफ Z. Why? If Z is maximum, height. If Z is maximum, equilibrium will be
स्टेबल, राइट। सो क्या लिखेंगे, dz ओवर डी थीटा को 0 पुट कीजिए, सो गेट द वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर दिस थीटा check the sign of d2z over d theta square. Problem finished. Problem finished. So dz over d theta का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -3 sin थीटा, b बाहर है, प्लस cos थीटा दैट गोज टू 0. दिस इंप्लाइज b गया उधर, -3 sin माइनस cos थीटा, सो tan थीटा इक्वल्स 1/3, थीटा का वैल्यू मिल गया tan इनवर्स 1/3. d2z ओवर डी थीटा स्क्वायर, तो b टाइम्स -3 cos थीटा माइनस साइन थीटा. अब d2z ओवर डी थीटा एट थीटा इक्वल्स tan इनवर्स 1/3. This you can observe, this comes out as less than 0, so z is maximum at the point theta equals tan inverse 1/3. tan थीटा का वैल्यू 1/3 है, तो साइन थीटा निकाल लीजिए. बच्चा लोग की तरह है, राइट और नॉट? इसमें तो कोई तनाव नहीं होगा किसी को, से यस और नो. तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर, जो कि आपको लिखना है एग्जाम हॉल में. बोलो, किसी को कोई तनाव, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई होप नो. सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टमैटिक लर्निंग. कहां से कहानी स्टार्ट की थी? मैं चाहता तो सीधा प्रॉब्लम उठाता और आपसे कहता कि यहां पे याद कर लो, डेप्थ निकालना है, यहां पर याद कर लो, ये करना है. लेकिन अगर आपने आर्टिकल 1, 2, 3 वाले प्रॉब्लम्स मिस किए हैं तो उनको अटेंड कीजिए, आपको इस टाइप की प्रॉब्लम्स में भी मजा आने लगेगा, आई एम प्रीटी श्योर. ठीक है, सो आई होप रेक्टेंगुलर लेमिनास के लिए वी हैव डन द थिंग्स. रेक्टेंगुलर लेमिनास के लिए हमने आपको प्रोसेस बताने की कोशिश की फॉर stable and unstable equilibrium. I hope this helps you out, and if you want more to be done, don't forget to let us know. We will definitely consider your problems, and I guess you have enjoyed the lecture, so it's enough from my side. Thank you all. It's good luck.